present today. On behalf of Technia Institute of Advanced Studies, I take this pleasure of starting with our webinar sessions, which will be a regular practice from here onwards. Starting from today, 3rd of January 2026, every Saturday we'll be having an online lecture on the emerging technologies we have. Today we have Mr. Sudarshan with us. He is a techno-commercial leader known for driving AI-led innovation and large-scale transformation across customers' experience domains. At the Kochar Group, he leads the digital and AI strategy across subsidiaries, including IGZY, Physical and Maxicus, and digital transformation for contact centers. Operating in complex, ambiguous environment, he excels at problem framing, building structured transformation roadmaps, and translating AI capabilities into measurable business outcomes. Sudarshan partners closely with senior stakeholders to identify, prioritize, and execute high impact opportunities at scale. Previously, at Airtel Payments Bank, he improved transaction experience for retails, merchants, and B2C e-commerce users, driving customer-centric improvements and operational efficiencies. Now, I would like invite Sudarshan to take up the session. Sudarshan, please. Sure. Thank you, ma'am. Hey guys, hello everyone. So I assume we have faculty members over here and students across BCA and MCA both, right? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So guys, this is going to be an interactive session. This is not going to be just only me speaking. Okay. I understand everyone cannot unmute themselves and then like say something or speak something that disturbs the whole webinar. What we'll do that whenever I ask some questions, some emoticons or some raise of hands will help me that you are able to connect. Okay. And while during the session, if you have any questions or something, if it is permissible, you can put it on chat and I'll pick them up to maybe at that moment or probably towards end of the session. Hope that works. Yes, sir. Okay. Sure. Okay. Okay, guys. So, ma'am gave a brief introduction that what and how my corporate journey has been, but I wanted to share something more. I've been also a student of IP University, so I did BCA and MCA both from IP University, and I joined in 2008 in JSS Academy, and then 2011 as MCA student in Banarsidas Chandiwala. There I met Sushma ma'am, and since then the journey has been connected. And today I'm with you all guys, with all of you, to discuss how the industry is moving and how AI has impacted the job market, the development, the development, and how it is impacting our day-to-day daily life. Okay. The session is not going to be only scoped to technology, it would be scoped beyond technology as well. Since I believe that AI is not only impacting our technology domain, but how we work or how we interact with digital systems. Okay. So we are going to look towards all of them. So let me share screen and we'll start talking about them. Let me know guys if the screen is visible. Yes, it Yes, is. sir. Sure. Okay. So who is an architect? Architect can be anyone who knows how to design. Okay. So at home we call architect to build things, the furniture, the look and layout. For technology, we always have solution architects, that how we are going to build a solution. In today's world, when the technology is changing with such a lot of pace and everything, so we need similar people who can build or you can do the architecture of AI. Those are the people who are most in demand. The reason being, AI is so easily available and so easily learnable that you need people who can use AI to build outputs.
and hence the term AI architects is needed. Obviously, since you will be moving from college to a fresher level of job, or you can say just starting your career, that is not a particular designation you might be able to achieve as an AI architect on day one, but that should be your goal, that this is where you want to move ahead. And that is how you can, when you are preparing your resume or you are preparing your interviews, you will start preparing that this is how I'm moving towards. This could be into your technology as well, or if you're into going, if you're planning into marketing, HR, sales, or any department. Okay. The reason being, when I say any department and beyond just technology, is the reason is every department, हम जिस भी department के बारे में बात करें, हर जगह automation आ रहा है, हर जगह AI आ रहा है. Okay. So उसके लिए we'll need people, we need technical people in each and every department. Okay. So let's understand कि अभी practically scenario हो क्या रहा है. अभी industry में, marketing industry में क्या हो रहा है? Industry में the hiring which was happening, let's say hundreds of software engineers were hired in one batch of one go, that has fallen down. Pure engineering में hiring जो है from 100 it has reduced to around 40 to 60% only. And बाकी non-engineering division में departments में hiring has picked up. The reason being every process in systems जहां कभी सोचा भी नहीं गया था कि टेक्नोलॉजी की नीड होगी, वहां पे people have started to put in AI. Okay. For example, अगर मैं इसका example दूं, so I currently work with Coacher Tech, and where we have an internship program where we hire interns and we allocate them to the various departments. So there's a guy from BTech, I think from Chitkara College or something. He's from there, and even though he's doing BTech in CS, he has joined as an intern in a marketing department. And now, if I pitch that to you, BCA, MCA, or any other folk, BTech CS guy, he would be hesitant that I'm a CS guy background, but what I'm doing in marketing department. But what thing he did, that we explained in the process, we gave him the tools, these are the tools and this is the process which we need to implement. एंड जो एक टास्क होता था मार्केटिंग के बंदे का कि भाई वो आया दिन में, एंड एवरी डे दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑफ मार्केटिंग जो कि पीओ पे मार्केटिंग का बंदा था, ही यूज्ड टू स्पेंड हाफ ऑफ हिज डे एवरी डे फॉर 30 days, मतलब in a month 30 days. So every half day he used to spend on searching certain profiles, searching, doing market research and all those stuff. And this guy comes in, he's given the workflow, he's given the stuff that these are the tools which he needs to implement, this is how he has to do. वो उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है. कैसे ऑटोमेट कर देता है कि भाई वी नो कि सर्च के लिए आपको क्या यूज करना है, ये टूल्स यूज करने हैं आपको, उसके बाद कौन सी एपीआई ऐड करनी है, ये एपीआई ऐड करनी है, उसका डेटा कहाँ लाना है, एक्सेल में लाना है. एंड ये उस जर्नी को करता है एंड उस वर्कफ्लो को बनाता है. इस वर्कफ्लो को बनाने के लिए उसको लगते हैं 4 से 5 दिन का एफर्ट लगता है. बट उसके बाद जो वो वर्कफ्लो बन जाता है, व्हाट द गाय डिड, उसने जो मार्केटिंग के एम्प्लॉयज थे उनका हाफ डे फ्री कर दिया. Now those people can use their half of the day for some other work or for some other creative work for the marketing thing, and not just waste on redundant tasks which could be automated or which could be transformed. तो आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि when we are talking about AI is not just कि आपने प्रोग्रामिंग करके आप CS बैकग्राउंड में ही आप इंजीनियरिंग करके सिर्फ उसी को इंप्रूव कर रहे हो. AI has empowered each one of us to understand कि हम लोग फ्लोज को, वर्क फ्लोज को कैसे इंप्रूव कर पाए. Okay. Are you guys aware what is a workflow? Anyone from the BC or MCA guy who want to like revert or reply on this? Okay. So workflow का एग्जांपल अभी मैंने समझाया. अभी अपने एज अगर कॉलेज का, चलो ठीक है, कॉलेज में एग्जांपल लेते हैं. अपने को एक एग्जाम है, लेट्स से आई थिंक जून में एग्जाम्स होते हैं, राइट मैम? जून में एग्जाम्स हैं. First, let me ask the students present here, what is their perspective of a workflow? So, what do you think of a workflow? What an workflow is? Any of the students who are present here, Zia, Yash Upadhyay, Vidhi, any of you? Yes, please speak up. Process of doing some work. Process, yes. Shreya, can you explain with an example, like what do you understand by a workflow? I'm like step to step doing some work, some task. Like Exactly. Yes. चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता है वो स्टेप बाय स्टेप
समझाया जा सकता है। हाँ जी, विल कंटिन्यू फर्दर। यस सुदर्शन प्लीज। श्योर, करेक्ट। कि स्टेप बाय स्टेप या उसका प्रोसेस क्या होता है कोई भी टास्क करने का, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका एग्जाम मई जून में आई थिंक होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। सो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका वर्क फ्लो क्या होगा कि यू नीड टू, मतलब कॉलेज नीड्स टू सेंड अ डॉक्यूमेंट दैट ये स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, दैट दे आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, करेक्ट। अब उसका वर्क फ्लो क्या हो सकता है अगर आप उसका वर्क फ्लो डिजाइन करो तो, कि फैकल्टी विल, डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी विल फर्स्ट गेट ऑल द लिस्ट for the students who are eligible to sit in the exam. Then administrative work क्या हो सकता है, ये चेक करना all the fees and the administrative fees are paid off or not, ये चेक करना। उसके बाद कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कि जिसकी अटेंडेंस लो हो, या फिर जिसका मेरिट लो हो, या फिर he has left the college and वो शीट अपडेट हुई कि नहीं हुई, ये चेक्स लगाना। उसके बाद उन टास्क की शीट बना के एक ऐसे फॉर्मेट में भेजना जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर सके। यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी अपने डेटाबेस के साथ उसको मॉनिटर करती है। देन क्रेडिट्स मैच करती है कि पिछले पिछले क्रेडिट्स हैं कि नहीं है, उन क्रेडिट्स को मैच करना। उसके बाद वापस आपके इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जनरेट करना, उनको वेबसाइट पे अपलोड करना। तो दिस इज द एंटायर वर्क फ्लो जो जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी वर्क फ्लो के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसमें किस किस स्टेप पे हम एआई लगा सकते हैं कि नहीं लगाना है, वो डिसीजन मेकिंग ह्यूमंस के हैंड में है और एआई के हैंड में है कि उनको ऑटोमेट कैसे किया जाए और डिसीजन मेकिंग हम उनसे कैसे कराएं। ये एक वर्क फ्लो क्लियर हुआ? यस सर। श्योर, ओके। अब अपने प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं, जो ये वर्क फ्लोज को बनाने में हेल्प करते हैं, दोज आर एआई आर्किटेक्ट्स, ओके। अच्छा, व्हाई दिस सेशन मैटर्स। सो ये सेशन मैटर इसलिए करता है क्योंकि द वे वी वर्क आज इज चेंजिंग, ओके। अभी तक क्या था कि अभी तक बहुत बड़ी टीम्स हुआ करती थी। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हुआ क्या कर रहा था कि किसी को नया कुछ प्रोडक्ट बनाना था तो दे यूज्ड टू हायर 50 पीपल, 100 पीपल, ठीक है। पर अब वो कॉन्सेप्ट ट्रेंड हट गया है। नाउ यू हैव वेरी डेडिकेटेड, वेरी फ्यू पीपल वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके। जिसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से देयर पीपल हु आर वर्किंग वेरी लिमिटेड टीम्स, बड़ी लिमिटेड टीम्स हो गई हैं एंड प्रिसाइज टीम्स हो गई हैं। Why? Because the speed of work has improved exponentially, not linearly, but exponentially via use of AI tools. Okay? Skill decay बहुत fast हो गया है। So I still remember जब I was in college and सुषमा मैम शीशा पढ़ाती थी उस टाइम पे। शीशा उस टाइम पढ़ाया गया। I went to do the first job. पहले 2 साल शीशा था। I studied that and then in next 2 years across the industry, मैम शीशा started to disappear and new technology started to grow up. And पिछले 5 साल से I hardly hear कि anyone is using or continuing on शीशा. Either it has taken over by TypeScript or Java Beans and all those stuff, but the technology kept on evolving. तो जो speed of decay of technology है वो बहुत ज्यादा fast हो गया है इन पिछले 5 साल में, okay? Now no one judges you on your syntax, ठीक है, because the syntax 95% of your code is being generated by AI. So syntax का matter नहीं रह गया है. It's about what you are doing and why you are doing. अच्छा, आप लोग ने अभी वो एक्सप्लोर किया, हैव यू बीन टॉट अबाउट बिग ओ नोटेशंस? गाइस अगर किया है तो रेज ऑफ हैंड्स कर दो ना, या इमोटिकॉन पे डाल दो, थम्स अप डाल दो, एटलीस्ट आई नो यू गाइस आर लिसनिंग और समथिंग एल्स। आई हैव टू चेंज ट्रैक और आई विल डू समथिंग लाइक वील डू सम अदर डिस्कशंस। गाइस बिग ओ नोटेशंस पर पढ़ाएंगे। और आर यू अवेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? Okay, let me ask two random people. Anmol Atri. Okay, Anmol, are you there? Gargi, I I think they just think joined. she said she is aware of the concept. Gargi, if you could explain what sir is asking. Sure. Gargi, can you unmute and can you tell? सर एक मैथमेटिकल वे जिससे हम लाइक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, गुड, क्लोज इनफ। सो ये हेल्प करेगा, बिग ओ नोटेशन या कॉन्सेप्ट पता हेल्प करेगा कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। रीजन बीइंग कि आप एआई को प्रॉम्प्ट देके यू कैन गेट द कोड जनरेटेड, बट उसको
आपसे कोड आपने मतलब लेट्स से कि किसने गार्गी ने कोड जनरेट किया हो या मिस्टर इंद्र ने जो कोड जनरेट किया हो या जिया ने कोड जनरेट किया हो, डिफरेंस कैसे पता चलेगा? डिफरेंस तभी पता चल सकेगा कि भाई इनपुट में आपने क्या दिया। लेट्स से गार्गी ने बोला कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, एंड फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, एंड गार्गी कहती है कि भाई मेरे को उसको रिकर्जन से लिखना है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट होना चाहिए, एंड दे कैन नॉट बी एंड इट शुड हैंडल यू कैन से इमेजिनरी नंबर्स एज वेल, ठीक है। इसका जो प्रोग्राम बन के आएगा वर्सेस जिया कहती है कि आई जस्ट वांट अ रिकर्जन प्रोग्राम फॉर द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। इसके प्रॉम्प्ट का प्रोग्राम जो बन के आएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। व्हाई? बिकॉज गार्गी ने उस प्रॉम्प्ट में क्या दिया, उसने उसको कॉन्टेक्स्ट भी दिया, प्लस उसको अपनी क्वालिटी बताई कि क्या क्वालिटी वो एक्सपेक्ट करिए कोड के अंदर, परफॉर्मेंस के बारे में बताया, ठीक है। और वो तब पता होगा जब आपने खुद से वो चीजें कर रखी होंगी। एल्स आप सिर्फ इसको एआई को बोल दो कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग, बट कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स ही नहीं पता होंगे, पैरामीटर्स ही नहीं पता होंगे, तो वो मैट्रिक्स वो पैरामीटर्स पता होना जरूरी है ताकि आप एआई से बेस्ट आउटपुट जनरेट करा पाओ। ओके, ठीक है। एआई इल्यूजन, अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपने चलते हैं। तो व्हाट इज एआई इल्यूजन? सो ये जानना जरूरी है कि एआई क्या नहीं है, ठीक है। एआई को खुद से ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जैसा भी मैंने क्या बताया कि आपने उसको बोल दिया रिकर्जन का प्रोग्राम लिखना है, सो उसको खुद से अंडरस्टैंडिंग नहीं है until unless humans tell it कि what kind of recursion का प्रोग्राम you are expecting, ठीक है। It has no intent or purpose. Every output is probabilistic, meaning कि आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो वो हो सकता है कि 4 लाइन में दे दे, 2 लाइन में दे दे, ये उसके मॉडल पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से उस मॉडल को बनाया गया है, करेक्ट। फिर आता है उसका इट हैज डज नॉट हैव कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें अपने सी इन सी आउट ऐसे यूज किया करते थे, राइट, ठीक है। अगर वो जब फर्स्ट कट बनाते हैं उसके अंदर कोई सीन में इंटीजर देने के बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू या इस टाइप से कुछ कर दे, एंटर कर दे, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दे, सो हमें पता है कि हमें उसको मैसेज है, उसको एरर मैसेज क्या दिखाना है, ठीक है। बट इफ यू आस्क एआई टू राइट अ प्रोग्राम, until unless you tell it कि you want exceptions to be handled gracefully, will it handle? It won't, because it does not have common sense. It will work only on the things which have been asked to do it. अगर आपने उसको बोला ही नहीं है, बताना ही नहीं है, तो वो उतना ही करेगा जितना उसको इन्फॉर्म किया गया है, ओके। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। ओके, नाउ हाउ एक्चुअली एआई एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। एआई वर्क्स विथ पैटर्न प्रेडिक्शन, हिस्टोरिकल लर्निंग एंड नो अवेयरनेस, एंड इट ओनली सिमुलेट इंटेलिजेंस, ओके। अच्छा गाइस, कैमरा ऑन कर लो, ऐसे मतलब इट इज गोइंग नॉन इंटरेक्टिव वे, लेट्स हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। कैमरा ऑन कर लो आप लोग, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स। एंड टेल मी, जनवरी में बर्थडे किसका आ रहा है, पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। And if you guys are not telling me the birthday, then let's start with Tamanna Chakravarti. Tamanna, can you please turn on your camera and your mic, and let's make it interactive. Or anyone else, ma'am, can you ask someone, like any of the student, to turn on the camera and mic so the session can be interactive? All these students, please turn on your camera, mic, as and when asked या आपको आंसर करना है उस टाइम पे आप ऑन कर सकते हैं। गार्गी, मैम मेरे कैमरा में थोड़ा टेक्निकल इशू है। कोई इशू नहीं है। सौम्या, सोनिया, and all others, please switch on your camera. We'll be taking screenshots in between, so we require the camera to be switched on by everyone who is there present in the meeting. Yes, we may. Yeah, I will continue. Any of the student who wants to answer, like I have few questions. Hall,
Am I taking your name properly? HOUL, Hall, right? Sir, Achal hai. Sorry, Achal Sharma. I didn't get your name. Achal Sharma. Anchal Sharma. Okay. Anchal, have you used any AI tools? अभी सर अभी तो यूज नहीं करा बट फ्यूचर में यूज करूंगी. नहीं, फ्यूचर में यूज करोगे. अभी तक चैट जीपीटी यूज किया आपने? हाँ जी सर. चैट जीपीटी या उसके अलावा और कौन कौन से एआई टूल्स यूज किए? सर पर्सपेक्टिव के नाम से कोई एक एप्लीकेशन था वो भी यूज करा है. Okay. वो ज्यादा यूजफुल तो नहीं है क्योंकि उसमें जो हमें जो चाहिए होता है वो स्पेसिफिक नहीं देता बट चैट जीपीटी जो है वो स्पेसिफिक दे देता है आंसर. Okay. एंड आंचल, आप बीसीए में एमसीए में हो? सर एमसीए एमसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सपेक्टिव आई हैव टू चेक. पर्सपेक्टिव है क्या चीज? इवन आई हैव टू सी. पर्सपेक्टिव एआई? यस सर. वो पता नहीं कोई एआई टूल है No. जिससे ठीक है. जिसका ओके. चैट जीपीटी के अलावा और कोई है यहाँ जहाँ पे किसी ने और भी कोई एआई टूल यूज किया हो? एनीवन वांट्स टू टॉक बियॉन्ड चैट जीपीटी? ओके, गार्गी प्लीज. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन से. सर गामा एआई यूज किया है मैंने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और study.lol करके, मतलब कोई भी यूट्यूब का लिंक है अगर उसके आगे study.lol कर दो तो वो आपको, मतलब जो भी आप लाइक वीडियो देख रहे हो उसके नोट्स आपको प्रिपेयर करके दे देता है. और परप्लेक्सिटी और एक और है, मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा. परफेक्ट. थैंक्स गार्गी. सो गाइज, मेरा क्वेश्चन ये पूछने का इसलिए था, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने, व्हेन यू से एआई, आर यू थिंकिंग बियॉन्ड चैट जीपीटी और नॉट? वो समझना जरूरी है, क्योंकि चैट जीपीटी इज अ चैटबॉट. लाइक जब स्टार्ट हुआ आज से 2 साल पहले, दैट केम एज अ चैटबॉट ऑन टॉप ऑफ एलएम मॉडल्स. ठीक है. चैट जीपीटी इज नॉट जस्ट ओनली एआई. ट्रू एआई इज द मॉडल which it is using internally. ठीक है. एंड चैट जीपीटी की फुल फॉर्म किसको पता है? जाके आप गूगल मत करना प्लीज. सो जीपीटी केम एज अ, सो आज से 4 साल पहले गूगल ने, 4-5 साल पहले गूगल ने एक पेपर रिलीज किया था. उसके ऊपर इट केम एज अ जीपीटी. ठीक है. एंड ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स? यू कैन रीड थ्रू देम. ठीक है. द रीजन बीइंग, चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है एक मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. ओके. तो कोई आर्किटेक्ट ने सोचा कि भाई एक मॉडल तो पड़ा है, मॉडल मतलब टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस पड़ा है, जिसमें कई बार आप सुनते होंगे 80 बिलियन पैरामीटर्स. दैट मीन्स इट हैज बीन ट्रेन्ड ओवर ऑन 80 बिलियन कैरेक्टर्स और वर्ड्स, जिसके बेस पे वो प्रेडिक्टेबल आंसर देगा आपको. ठीक है. और ये सारे जो हो गए, ये हो गए टेक्स्ट बेस्ड. ठीक है. जिसमें आप टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हो एआई के साथ. ओके. बट क्या सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ही होते हैं? तो ये मेरा अगली स्लाइड पे है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई. जी ठीक है. और अपने जो डिफरेंशिएट करेंगे वो कैपेबिलिटी के बेस पे करेंगे कि भाई ये जो एआई के मॉडल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे. तो एज मैम मेंशन ना इनिशियली कि मेरे उसमें कॉर्पोरेट प्रोफाइल में, सो एक्जी, IGZY, दैट इज कॉल्ड एक्जी. ठीक है. एक्जी इज एन IoT प्लेटफॉर्म जो कि बैंक्स की डिजिटल सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं. ओके. तो हाउ आई एम यूजिंग एआई ओवर देयर. देन देयर इज फिजिटल. फिजिटल है इज अ प्रोडक्ट वेयर वी आर बिल्डिंग वीडियो कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. अभी तक नॉर्मली आप क्या करते हो? आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे यू बाय द फोटो ऑफ द प्रोडक्ट. Okay, but the world and the technology is evolving that you can do a video call to a call center, you can see the live product and then you can make the decision. ठीक है. अब वहां पे AI कैसे लगाया जा सकता है, उसके लिए फिजिटल नाम के प्रोडक्ट पे वी आर पुटिंग इन AI. ओके. सो अब कैपेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन किया कि 6-7 तरह के जो AI हैं वो क्या क्या है. पहला हो गया चैटबॉट आपका. तो चैट जीपीटी आ गया, या जेमिनी के अंदर आप टेक्स्ट बेस करके चीजें पूछते हो, या परप्लेक्सिटी में पूछते हो, दोज आर चैटबॉट्स. ओके. Now, is anyone aware of RAG systems? हम RAG कहाँ यूज कर रहे होंगे? ठीक है. चलो, कोई भी रेलवे की वेबसाइट या बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो आजकल नहीं होता राइट साइड में एक चैटबॉट लिखा होता है जिससे आप सवाल पूछ सकते हो, एंड इट विल आंसर यू.
वो चैटबॉट सिर्फ और सिर्फ आपको, लेट्स से HDFC बैंक की आप वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ चैटबॉट देखा, if you ask it about HDFC Bank it will answer, but if you ask it what is 2 + 2 and it will, if you expect कि भाई वो आंसर कर दे या who is president of India ये सब पूछोगे and वो आंसर कर दे, वो नहीं करता। आइडली उसको नहीं करना चाहिए एंड वो नहीं भी करेगा। वाई? बिकॉज इट इज बीन स्कोप्ड कि भाई आपकी नॉलेज जो होनी है वो लिमिटेड होनी है। So this is called retrieval augment generation. That is, you control the knowledge. Chat GPT वगैरह how they work, they have been trained on the content which was available on free internet. ठीक है, पर लेट्स से टेक्निया को अपना चैटबॉट बनाना है, वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है। दिस कैन बी अ लाइव प्रोजेक्ट व्हिच एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन पिक इट अप एंड इंप्लीमेंट द सेम। कि आप लोग एक ऐसा चैटबॉट बनाओगे जो रियल टाइम पे स्कैन करता रहेगा टेक्निया की वेबसाइट को। वो चैटबॉट आपके होम पेज पे इंटीग्रेट रहेगा, उस पर कोई भी क्वेश्चन जब पूछेगा तो anyone instead of going and clicking on multiple pages and seeing what the website information holds, it can be asked from that particular bot, Technica bot, and it will respond कि भाई क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर someone wants to know कि भाई सेमेस्टर ब्रेक कब होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सर्चिंग 10 पेजेस इन दी वेबसाइट, वो चैटबॉट ही इंटरनली जाके ढूंढेगा कहाँ से, डॉक्यूमेंट्स के अंदर से या वेबसाइट के अंदर से इंफॉर्मेशन लाके उस यूजर को दिखा देगा, ताकि आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो वेबसाइट के साथ ह्यूमन वे में। बिकॉज क्लिकिंग इज नॉट अ ह्यूमन वे, दैट इज अ डिजिटल वे। बट ह्यूमन कैसे बात करते हैं? आइदर दे स्पीक और दे, यू कैन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज राइटिंग और आस्किंग, करेक्ट, एंड नॉट क्लिकिंग। क्लिकिंग इज अ डिजिटल, जो कि कंप्यूटर्स को इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम था, करेक्ट। जबकि ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं? बात करके या लिख के। तो उसी चीज को एआई के चैटबॉट के थ्रू अपने पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स एलएमस। एलएमस हो गए कि जो मॉडल, जैसे चैट जीपीटी का जो एलएम है, ठीक है, वो आता है वर्जन 5.1 5.2 इस तरह से आते रहते हैं। तो एलएम्स हो गया। जेमिनी का मॉडल क्या होता है? उसका नाम होता है जेमा। या फिर फेसबुक का जो मेटा एआई के पीछे जो मॉडल है उसका नाम है ओलामा। सो दीज आर मॉडल्स विच आर बीइंग ट्रेन्ड, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड पे कम्युनिकेशन करने के लिए, बात के लिए यूज होती हैं। ओके, देन फ्रॉम एलएम्स इट हैज वीएलएम्स, विजन लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, सो विजन लैंग्वेज मॉडल्स जैसे बीच में भी आ गया था ना बनाना प्रो, आप लोग यूज किया होगा इमेज जनरेट करने के लिए, रैंडम एआई इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए वीएलएम्स यूज होते हैं कि हाउ वी कैन यूज मॉडल्स टू जनरेट इमेजेस और फोटोज, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंप्यूटर विजन। अच्छा, रिमेंबर मैंने भी कहा था एक्जी में बैंक्स की डिजिटल सिक्योरिटी होती है। ओके, अब एआई का ऑटोमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है? अभी लेट्स से आईसीआईसी बैंक है हम लोग, द वर्क व्हिच वी आर डूइंग दैट, सो आईसीआईसीआई सिर्फ आईसीआईसी बैंक आपने देखा है, राइट? दे आर इंडिया में उनके 6000 ब्रांचेस हैं। ओके, सो नाउ आईसीआईसी बैंक्स हैव टू सिक्योरिटी एट 6000 प्लेसेस, करेक्ट। सो दे आइदर पुट अ मैनुअल लेबर या एक इसको आपको, दे आइदर पार्टनरशिप विद सम सिक्योरिटी फर्म एंड हैव 6000 पीपल एम्प्लॉयड ओवर देयर विद रिस्क कि उसको कोई ओवर पावर करने आ जाएगा, लेट्स से कोई गैंग और सम ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ इंपैक्ट करना चाहते हैं बैंक की सिक्योरिटी को, एंड दे माइट ओवरथ्रो हिम, करेक्ट। सो व्हाट दे डू कि भाई सीसीटीवी तो हर जगह लगे रहते हैं, उन सीसीटीवी की फीड से कैन वी डू सम ऑटोमेशन और एआई एंड गेट अलर्ट्स टाइमली। नाउ आई वांट some of the students to interact and tell me what kind of scenarios a bank would prefer कि लेट्स से सीसीटीवी अंदर लगा हुआ है, किस मोमेंट पे अलर्ट चाहेंगे, क्या चीज हो ऐसा कि जिसपे उनको अलर्ट आ जाए। Yeah, the प्रेरणा, answer is expected from the students who have joined. करेक्ट। Nitika Nupur, Prerna, Freya. Yes, please speak up. You're there in the session. अनवांटेड थिंग टच करने पे ओके, थ्रू फायर अलर्ट। फायर अलर्ट, ओके। सो गुनगुन एंड निकिता एंड नुपुर, आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप ले ही लिया एआई आर्किटेक्ट बनने के लिए। आई एम टेलिंग यू सीरियसली बिकॉज यू स्टार्टेड थिंकिंग, एंड दीज आर द परफेक्ट 2 एग्जांपल्स जो कि इंप्लीमेंट करने के लिए आईसीआईसीआई से यूज केसेस शेयर हुए।
सो हाउ अ रियल वर्ल्ड वर्क, रियल वर्ल्ड में आप जब जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो हाउ इट वर्क्स, कि आपने कंप्यूटर, लेट्स से अगर आप डिजिटल सिक्योरिटी में ही होते, फॉर एग्जांपल मेरे डोमेन में कोचर टेक की डिजिटल कंपनी जो है डिजिटल सिक्योरिटी की एग्जी के अंदर, उसके अंदर आप वर्क कर रहे होते, सो यू हैव कंप्यूटर फीड्स कमिंग इन। फॉर एग्जाम्पल इसको आप कॉलेज में देख लो, ठीक है, जो यूज केसेस उनमें से कुछ यूज केसेस कॉलेज में भी लग सकते हैं, कि आपके कॉलेज में सीसीटीवी लगे हुए हैं, ठीक है, एक कॉमन सीसीटीवी रूम भी होगा जहाँ पे कैमरा की फीड्स आ रही हैं, करेक्ट। अब आप क्या वहां पे फायर अलार्म का अलर्ट लगा सकते हो कि वो जो फीड आ रही है कंप्यूटर की विजन से, आपको जो कंप्यूटर की फीड मिल रही है, मतलब कैमरा की फीड मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एन आरटीएसपी स्ट्रीम, ठीक है, इसको आप लिख लो, नोट कर लो एंड रीड अबाउट इट, आरटीएसपी स्ट्रीम। वो आरटीएसपी स्ट्रीम के ऊपर वीडियो क्या है, वीडियो इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। हैव यू हर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 30 fps 60 fps? सो 30 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, राइट। सो वो वीडियो क्या है, वीडियो इज एफपीएस। उन फोटोज को पिक करके आप कैसे उन पे एआई लगा के, या फिर कौन सा एआई, कंप्यूटर विजन वाला एआई, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, कंप्यूटर विजन, राइट। सो कंप्यूटर विजन लगा के आप कैसे उन पे एनालिसिस कर सकते हो कि इज देयर फायर ओवर देयर, या फिर किसी ने कोई अनसॉलिसिटेड सामान छोड़ दिया है या कोई बैग रख दिया है एंड उसका अलर्ट मिल जाए, एडमिन को उसका अलर्ट पहुंच जाए, ठीक है। फायर का अलर्ट कैसे पहुंचेगा, कि भाई आपकी एक फोटो आपने एनालाइज कर रखी है, लगा रखी है, एंड देन यू आर एबल टू सी स्मोक एंड देन यू आर एबल टू सी फायर, जिसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, करेक्ट। एंड देन उसको आपने लगाया एंड इसका अलर्ट रेज हो जाएगा, वो व्हाट्सएप जा सकता है या ईमेल जा सकता है फैकल्टी मेंबर को कि भाई ये एक इशू हो गया है यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज 5-6 बजे शट डाउन हो जाता है, ठीक है, 8 बजे देयर सम स्पार्क और समथिंग। अब इस मोमेंट पे आप डिसीजन कैसे लोगे, सीसीटीवी पर सब लगे हुए थे, पर क्या अगर या तो कोई जो गार्ड है वो पूरे टाइम घूमता रहे, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हर ह्यूमन हर टाइम अवेलेबल हो, करेक्ट। पर कैमरा फीड तो हर जगह हर कैमरे की ऑन रहती है, वो कवरेज है, पर उस इमेज के अंदर से क्या ये निकाल सकते हैं कि आपने सडनली कहीं फायर देखा या स्मोक देखा है ना, आपने अलर्ट भेज दिया, करेक्ट। इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि भाई हम सेंसर ही लगा देते, राइट, बट द वर्ल्ड इज मूविंग, नो वन वांट्स टू कीप अ हार्डवेयर बेस्ड सेंसर, एवरीवन वांट्स कि सीसीटीवी जबकि एक डिवाइस लगा हुआ है उसी के अंदर से सारा काम हो जाए, मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल हार्डवेयर मैनेज ना करना पड़े, क्योंकि आपको उस हार्डवेयर के भी उसका सेंसर का भी आपको चेक रखना पड़ेगा, 2 साल बाद 3 साल बाद सेंसर खराब हो जाए सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा, जबकि सीसीटीवी कैमरास की लाइफ होती है 10 से 15 साल, एंड प्लस एक कैमरा लगा के आप ये दोनों काम कर लोगे, अगर किसी ने कोई सामान छोड़ा है या उठाया है वो भी पता चल जाएगा, और दूसरा फायर है धुआं है वो भी पता चल जाएगा। इनफैक्ट जैसे आपने फायर के लिए लीकेज के लिए बोला, तो बैंक्स में लेट से कुछ ऐसे एरिया में बैंक्स हैं जहां पे बहुत बारिश होती है, तो अगर पानी एंटर कर गया है या कॉलेज में, लेट से द कॉलेज इज नियर यू कैन से रिवर बेड और समथिंग, एंड फ्लड के इशू से पानी आने वाला बढ़ने वाला है एंड कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर पानी एंटर कर गया है, तो उसका अलर्ट चला जाए, सो द यूनिवर्सिटी लाइक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नोज कि दे नीड टू टेक एन एक्शन, ठीक है। एंड हाउ यू कैन डू दैट बाय पुटिंग video analytics or video AI VLM models on based of those camera streams, ठीक है। So this is how you start thinking कि भाई AI या digital transformation या AI transformation आपको कैसे help करने वाला है। CCTV पिछले 20 साल 25 साल से एक बहुत आम बात हो गई, हर जगह लगने लग गए, बट उसका यूज केस या उसकी एप्लीकेशन कैसे करने वाले हैं वो ये चीजें आने वाली हैं। एंड दीज आर वेरी इजी प्रोजेक्ट्स जो आप लोग भी बना सकते हो, मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट यू कैन अप्लाई ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट चैटबॉट कैन डू। चैटबॉट फ्लुएंट लैंग्वेज के लिए उसको बाउंड्रीज नहीं, पर उसमें हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। देन रैग के लिए, अच्छा अभी अपने एक दो यूज केस डिस्कस करते हैं, एक दो अपने यूज केस जो हैं ये डिस्कस करेंगे लेट्स से अपने एचआर पर्सपेक्टिव से। एचआर पर्सपेक्टिव या इसको आप कहीं भी मांग लो, एचआर या मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, किसी भी पर्सपेक्टिव में मांग लो, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन सर्टेन लिंक्स जिसपे आ जाती है लेट्स से कि अच्छा अभी हायरिंग पीरियड अभी स्टार्ट होता है कि अभी अगस्त में हो गया है, मतलब आधे मैम कंपनीज अभी भी आ रही है कि अगस्त में आ चुकी है सारी? It is an ongoing process. ऑनलाइन प्रोसेस ना, ठीक है मैम। चलो ये तो कॉलेजेस, ये कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही हैं, करेक्ट। उसके अलावा कितनी कंपनीज होती हैं जो कि लिंक्डइन या सोशल मीडिया पोस्ट पे वो लिख के रखती हैं कि भाई क्लिक ऑन दिस लिंक एंड देन क्लिक ऑन दिस लिंक और ईमेल अस द रिज्यूमे विद सो डिटेल्स एंड वी कैन कंसीडर योर प्रोफाइल वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, राइट। सो ये प्रोसेस तो पिछले 15 साल 20 साल से चले जा रहा था, राइट। इसमें इनोवेशन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि लोगों के पास टाइम टू हायर रिड्यूस करना था। एक कैंडिडेट को, एक एम्प्लॉय को हायर करने की एक कॉस्ट आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नए फ्रेशर को हायर करना है तो जितनी उसको सैलरी देने वाले हैं उतना ही कॉस्ट आ जाता है उसके पीछे एचआर को मैनेज करने के लिए, अलग अलग सिस्टम जनरेट करने के लिए
एंड उसका उतना टाइम स्पेंड होता है टू गेट द थिंग्स डन। पर क्या अब थॉट प्रोसेस सुनना, इसको हम लोगों ने ऑटोमेट किया अपनी कंपनी में। हाउ डिड वी ऑटोमेटेड कि वी पब्लिश द लिंक, उस लिंक पे आप बेसिक डिटेल्स ले रहे हो एंड पीडीएफ भी अपलोड करा रहे हो, रिज्यूमे अपलोड करा रहे हो, विच इज बीइंग टिल डन राइट नाउ बाय एवरीवन। हर कोई ऐसे ही करता है। पर इनोवेशन क्या की कि जो पीडीएफ अपलोड हुआ उसको हम लोगों ने डाला एक रैग मॉडल में। ठीक है, इफ यू रिकॉल रैग मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक नॉलेज, आपने एआई का जो एलएलएम मॉडल है उसको स्पेसिफिक नॉलेज कर दिया कि नाउ लेट्स से आई वांट टू हायर freshers who are of BCA, MCA और BTech and I want a database from them। ठीक है, और मैंने वो लिंक पब्लिश कर दिया एंड IPU यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया कि भाई यू कैन अपलोड योर PDF एंड एवरीथिंग। नाउ एज एन HR, ठीक है, इमेजिन करो उसके पास 1000 रिज्यूमे आ गए। कैन द HR रीड एंड गो थ्रू द एंटायर 1000 resumes and make any decisions? No, it cannot. The HR cannot. But what HR can do, if the HR had a system जहां पे वो 1000 के 1000 रिज्यूमे पे वो बात कर सके, कन्वर्सेशन कर सके, तो वो अपना डिसीजन ले पाएगा। क्यों ले पाएगा? क्योंकि जो कंटेंट रीड करके लाके दिखाना है वो हमने AI को बोल दिया कि रीड ऑल दैट थ्रू एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड टेल अस कि व्हाट इज द कन्वर्सेशन आस्क्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि थाउजेंड्स रिज्यूमे अपलोड हुए एंड आई कैन आस्क माय AI मॉडल कि प्लीज टेल मी top 20 resumes who have a CGPA of 8+, for example, CGPA of 8+, and have done at least 2 or 3 basic projects। अब इससे क्या होगा, जो 1000 रिज्यूमेज में थे जिन्होंने 8 CGPA या उससे ऊपर का नंबर मेंशन कर रखा होगा और 2 प्रोजेक्ट कर रखे होंगे, वो फिल्टर आउट हो गए। 1000 में से 400 फिल्टर आउट हो गए होंगे। अब उसने अगला डाला कि ऑल दोज who have at least Java और Python in their resume। तो 400 में से फिर कितने फिल्टर हो गए? 100 और फिल्टर हो गए। अब कितने बचे? 300 बचे। ठीक है, ऐसे करते करते वो जो फिल्टरिंग करते रहना था वो टॉप 100 तक पहुंच जाएंगे। HR टॉप 100 तक पहुंच गया। अब उसको उन 100 में से निकालनी इंफॉर्मेशन, या 100 को एक साथ इसने लिंक भेजना है, टेस्ट का लिंक भेजना है, तो क्या बोलेगा कि एक्सट्रैक्ट ऑल द ईमेल आईडीज, ठीक है, मॉडल में, एंड वो ये करना शुरू कर देगा, सबके ईमेल आईडी लाके दिखा देगा उन 100 में से। वरना अभी क्या होता था, अभी सिस्टम बनाने के लिए हर कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए थे जहां पे वो इन्फॉर्मेशन डालते, डीबी में डालते, डीबी से एक्सट्रैक्ट करते, फिर कहीं मेल मर्ज में अपलोड करते, हर एक को रीड करते, जो इसका एफर्ट था, जो महीने भर का एफर्ट होता इस 1000 रिज्यूमेस को एक्शन लेने के लिए, एक HR का 1 मंथ का एफर्ट होता है, वो रिड्यूस होकर 2 डेज हो जाएगा। वाई 2 डेज हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो हमने AI के थ्रू उसको एनेबल कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड AI ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो अभी आप लोग सोचने के लिए जो आज इस सेशन में हो रहा है, इस सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू टीच टेक्नोलॉजी। मैम ने कल जब पूछा कि आप किस टेक्नोलॉजी वर्क कर रहे हो, सो सर आई डोंट वर्क ऑन टेक्नोलॉजी एनीमोर, आई वर्क ऑन हाउ वी थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, कैसे अपने डे टू डे लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, आप जब आज के टाइम में आप कुल सोचो ना, आप लाइक आई थिंक दे आर 60 लोगों की स्ट्रेंथ है अभी मैम इस कॉलेज में MCA की। 60 50 मैम? Yes, yes, yes. It's 60 है। IPU यूनिवर्सिटी में लेट्स से 500 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अक्रॉस इंडिया आप लेके जाओगे 1 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट्स MCA के होंगे या BTech के मिला के। व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? सबके पास AI टूल्स हो गए हैं। ठीक है, एवरीवन हैज डन एटलीस्ट 2 to 3 AI टूल्स। डिफरेंशिएटर क्या होने वाला है? डिफरेंशिएटर ये होने वाला है कि हैव यू अप्लाइड दैट इन सम रियल वर्ल्ड यूज केसेस। ये डिफरेंशिएटर होने वाला है। इसलिए जो पिछले 10 मिनट की कन्वर्सेशन की उसमें हमने बातें की कि क्या क्या HR के प्रॉब्लम थे, क्या कैमरा फीड से प्रॉब्लम है, इन सब चीजों को लेके, ताकि अब आप में से कोई एक भी बच्चा अगर अपने कॉलेज की RTSP स्ट्रीम को लेके वीडियो एनालिटिक्स उस पर कर गया, सो इट वुड बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट फॉर यू एंड फॉर कॉलेज एज वेल। कॉलेज के पास जब मैम ये मतलब यू कैन take it as a major minor project whichever way कि इसको इम्प्लीमेंट करवाओ कि जब आपके कॉलेज में नेक्स्ट टाइम कंपनी आएगी, टेल देम कि आपके स्टूडेंट्स कैसे यूज करें कि CCTV की RTSP स्ट्रीम लेके या एनालिटिक्स करके निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, इसको अगर क्लासरूम के अंदर CCTV लगे हुए मैम तो मैनुअल अटेंडेंस लेना ही बंद कर दो। CCTV के अंदर वो कैप्चर हो जाएगा, लोगों की फोटो, स्टूडेंट्स की फोटोज अपलोडेड होंगी आप लोग कॉलेज के डेटाबेस में, और वो मैच हो जाएगा कौन कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ऑब्वियसली प्रॉक्सीज बंद हो जाएंगी, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी सेइंग कि आप गलत प्रोजेक्ट का आइडिया दे रहे हो, बट दोज कैप्चरिंग दोज अटेंडेंस हैव बीन स्टार्टेड, और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मल्टीपल अदर कॉलेजेस में जहां मैंने इस तरह के सेशन लिए हैं वहां इस तरह के माइनर प्रोजेक्ट की तरह इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
ठीक है. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो किया जा रहा है. It एंड is a ये very जो good idea, and I'll be connecting to you and सॉरी a few of the students who are interested in the project. They will be connecting to you for further guidance. श्योर मैम. सो इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कॉलेजेस के अंदर. एंड मतलब आईपीसीडी के अदर कॉलेजेस में जहाँ जहाँ पे दीज काइंड ऑफ सेशंस व्हिच आई हैव टेकन, तो इस तरह से हो रहा है. सो some time back I was there in a hackathon in another college, and folks over there again be MCA students only. ठीक है, MCA students only. and उन्होंने सो Amazon से आपका डिजिटल ECG मंगाया. ECG मंगाया, दे आर ट्रैकिंग कि भाई आपके डेटा रीडिंग क्या हो रही है. सो ECG की मशीन मिलना, डिजिटल मशीन मिलना इज अ डिजिटल, ठीक है, कि आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल गई. पर उसको उन्होंने एनालाइज किया कि भाई एक ह्यूमन नॉर्मल हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट अभी जो मेजर किया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दिस गाय कैन गो और लीड इनटू सम हार्ट इश्यूज एट लेटर स्टेज. ठीक है, तो उस डेटा ट्रैक को उन्होंने मॉडल किया एंड दे कंपेयर्ड इट वाया AI एंड ML मॉडल्स. ठीक है, सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच कॉलेज स्टूडेंट्स आर डूइंग. तो अगर आप लोग यहाँ पे सेशन में जो आ गए हो, आपने 50% तो आप बेटर हो गए हो किसी और स्टूडेंट से जो आया नहीं. ठीक है, एंड बाकी आप लोग इन 50% में भी कैसे आप टॉप 1% में से कैसे आओगे, जैसे इस तरह से सोचना शुरू करोगे और प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे. ठीक है, सो मूविंग अहेड, we did about RAG, then LLMs and VLMs. Computer vision. So computer vision पे मैंने कुछ certification भी किए थे last year. I'll tell you certain use cases and examples which interesting thing which we are doing. So I don't recall the name. किसी ने कहा था कि फायर को कैच करना और मतलब फायर वाला पॉइंट और अनसॉलिटेटेड सीड्स पढ़िए तो ये. सो ICICI बैंक का ATM होता है. ठीक है, ATM भी होते हैं, बैंक्स के ATM अगर होते हैं, करेक्ट. सो दे से दे वांट द नीड वाज कि लेट्स से दी पॉलिसी सेज, RBI पॉलिसी सेज कि कोई भी CCTV में अगर मतलब CC नहीं ATM में ATM बॉक्स लगे हैं, अगर एक से ज्यादा कोई बंदा आता है ATM के अंदर तो बैंक को अलर्ट आना चाहिए. क्यों? क्योंकि या तो वो बंदा उसका पासवर्ड देख लेगा, या फॉर बैंक वो हो सकता है कि दोनों लोग कनेक्टेड ना हो और थ्रेट हो एक दूसरे के लिए, या फिर ATM के लिए भी थ्रेट हो सकते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन डिटेक्शन करना, ये अलर्ट इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए CCTV से. ठीक है, पहला ये. दूसरा, क्या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके घुसा है, या कोई हेलमेट पहन के घुसा है, या फिर कोई बंदूक लेके घुसा है, ये सब इंफॉर्मेशन. सो इसका एग्जांपल ये है कि आज से 6 महीने पहले इफ किसी को अगर रिकॉल हो तो तनिष्क का बिहार में एक शोरूम था तनिष्क का, वहां पे थेफ्ट हुई थी. ठीक है, एंड वी वर ऑलरेडी इन प्रोसेस विद तनिष्क कि हम उनको ये सिक्योरिटी के मेजर्स दे पाए कि CCTV से आप सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर शूटर्स अंदर घुस गए हैं, ऑब्वियसली CCTV कैमरास कैनॉट स्टॉप दो शूटर्स. बंदूक लेके जो घुस गया उसको कैमरा रोक नहीं सकता, बट वो इंफॉर्मेशन जो है पुलिस के पास रिले होने में, बिकॉज देयर वाज नो डिजिटल और AI सिस्टम, वो रिले होने में हाफ एन आवर लगा जब तक वो चोरी कर चुके थे. पर अगर ये CCTV में दे हैड दिस सॉफ्टवेयर व्हिच वी हैड बिल्ट और समवन एल्स, देखो खाली हमारी कंपनी नहीं, और भी लोग बिल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्ड कर लिए होते कि वो उन्होंने ह्यूमन पोस्चर से, क्या ह्यूमन पोस्चर्स कि लोगों को नीचे उन्होंने घुटने में बैठा दिया है, उनके हैंड रेज करा दिए हैं. लेट्स से आप हैंड रेज करते हो एंड इस पे भी ह्यूमन आप AI एनालिटिक्स निकाल सकते हो. सो टूल्स फॉर दीज आर मीडिया पाइप. आप यू गाइस कैन राइट मीडिया पाइप, योलो एंड हाँ, योलो का मॉडल V9 है और मीडिया पाइप. इनको यूज करके आप ह्यूमन पोजिशन एंड ह्यूमन जेस्चर्स निकाल सकते हो. ठीक है, किसी भी फोटो या वीडियो फ्रेम के अंदर से, कि उसके बेसिस पे वो अलर्ट जनरेट कर लेते और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते, या फिर तनिष्क के ही मेन सेंट्रल ऑफिस में कम्युनिकेट कर देते, तो वो डिसीजन फास्ट ले पाते एंड चोरी तो हो रही थी लेकिन उन थीव्स का भागना वो रोका जा सकता था, कि सामान लेके वो भाग रहे हैं उसको रोका जा सकता था. तो ये हो गया कि आपको AI को सोचना कैसे है इंप्लीमेंट करने के लिए. मूविंग हेड, ये चीजें कंप्यूटर विजन से करते हैं. ठीक है, अब ऑटोमेशन थिंकिंग केस स्टडी पे आते हैं. केस स्टडी की ठीक है, ये केस स्टडी पे आते हैं. ठीक है, सो सी गाइस, पिछले 1 साल में पिछले 2 साल में AI बहुत ज्यादा स्पीड से चेंजेस हुए हैं, एंड आई बीन इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है, बैंडविड्थ देखो, अभी भी अपने को 1 घंटे के अंदर सेशन करना है, सो चीजें बहुत सारी होती हैं. डिजिटली कनेक्ट जब करते हैं तो कुछ ना कुछ गैप्स रहते हैं. I would be happy if anyone wants to reach out on LinkedIn, I'll be able to explain them कि भाई क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं, कैसे आप भी कर सकते हो. नो वरीज विद दैट. कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे इंडस्ट्री में आज के टाइम में हो रही हैं. ठीक है, इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स एवरीवन बीइंग एन AI जनरलिस्ट.
ठीक है, AI generalist, when I say for fresher level jobs, no one is looking for an SME. SME मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आज से पहले क्या था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कंपनीज मल्टीपल बल्क में हायरिंग किया करती थी। वो बल्क हायरिंग अब नहीं होगी कहीं भी, किसी भी कंपनी में, ठीक है। वो हायरिंग होगी, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो उसकी कंपनी में 1 या 2 पोजीशन होगी। तो क्या बाकी लोगों की जॉब्स नहीं चाहिए? जॉब्स चाहिए। तो वो कौन होंगे जॉब्स होंगे? जो कि AI जर्नलिस्ट होंगे, जो कि मल्टीपल टूल्स जानते होंगे AI से यूज करने के, और अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, सी आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू कंक्लूड माय सेशन। आई वांट टू नो, किसी ने make.com या N8N यूज किया है कभी? और हैज एनीवन हर्ड अबाउट इट? ठीक है। अच्छा, is anyone aware about difference between agent AI and agentic AI? AI agent versus agentic AI. So these are the terms which I am writing, ठीक है, ये आप लोग सबको पढ़ने होंगे। ठीक है, ये सब डिटेल्स आप लोग को पढ़ने होंगे ताकि आप लोग समझ पाओ। सी इंडस्ट्री गाइस बहुत फास्ट मूव कर रही है, बहुत सारी चीजें AI में हो रही हैं। आई कैन गिव यू, कीप ऑन टेलिंग यू jargons से टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, पर उससे ज़्यादा जरूरी है अपना थॉट प्रोसेस खोलना और ये समझना कि AI इज नॉट जस्ट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पूरे AI इकोसिस्टम का इज लेस देन 1%। ओके, उसके बियॉन्ड 100 चीजें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने बोल्ट या लवेबल का नाम सुना है? एनीवन यार, कोई तो किसी स्टूडेंट ने सुना होगा, ऐसे एकदम हार्ट ब्रोकन मत करो यार मेरे को। बोल्ट या लवेबल? ओके, एनी स्टूडेंट्स हु वांट टू इंटरेक्ट? कोई मैम जो यहाँ पे नॉर्मल इंटरेक्शन करना चाहे तो आई वांट टू पिच एन आइडिया, आई विल डिस्कस इट। और एक्चुअली अभी अपने सेशन के एंड पे हैं। अब मैं सेशन के एंड में क्या करने वाला हूँ, एन एप्लीकेशन इन लेस देन सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम में हम रियल टाइम पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे AI को यूज करके, एंड आई वांट समवन टू ब्रेनस्टॉर्म विद मी। कोई स्टूडेंट MCA का या BCA का, या फिर रैंडमली नेम पिक करूं? Yes, let it be an open and net session, and not only the students, even faculties could interact, and we can because technology जो भी आप यहाँ पे tools बता रहे हैं, most of the tools are new to everyone because we are into academics, and academics में इतना ज़्यादा use हम इसका नहीं करते हैं. So it will be helping in not only for ICT but other departments also to like explore the things, explore new things. So I'll request you to please send me a list of all the AI tools which are there, and जो हमारे लिए as an academician could be helpful to provide the knowledge to the students, and also the things which are currently being used by industry, not only in ICT domain but other domains as well. Yes, Yeah. ma'am. I'll surely send them. However, I'll just अभी अपने मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा मैम, लेकिन जस्ट थिंग है कि ओके, ठीक है, तो ये दो कुछ चीजें हैं जो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन। सो have you guys heard about vibe coding? Vibe coding? I think ये सब, मैम, this is something I've been interacting with other students from across university, and ये है मैम, like people are doing vibe coding and everything, like हम लोग offices में भी use करते हैं, corporate में use करते हैं, but students are also using them. So अगर यहाँ पे Maybe students का awareness students नहीं है are तो not वही disclosing the things. हाँ, The students are not disclosing what AI they are using in front of faculties, but definitely they ma'am, they might be using it. I'll tell certain topics that they are using, मैम। They'll be using how to do crack interviews, because मैं जब random interviews लेता हूँ ना freshers का,
So their eyes are always moving like this and then answering. And you can tell them that, or certain people put a mobile in front of camera and then they are listening and reading through it and then answering. So अब interviews लेने के time प्रोसेस ये change हो गया है कि after first or second round of interviews, I call those people like fresher, intern, anyone. They are being called in office and asked to write programs by hand on paper. ठीक है, ओनली द गुड कैंडिडेट्स जिसको हायर करना होता था, ताकि वो एआई के थ्रू रीड एंड राइट करके जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हट जाए. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी वन ऑफ अस इन लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में आपको करंट सस्टेन करना है तो आपको एआई टूल्स को यूज करके एप्लीकेशन बनाना आना जरूरी होने वाला है. ठीक है, सो अपने एक क्विक डेमो करेंगे कि क्या हाउ फास्ट एंड हाउ क्विक वी कैन बिल्ड एप्लीकेशंस. ठीक है, सो गाइस दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं. स्क्रीन विजिबल है मैम? स्क्रीन विजिबल हो गई थी बोर्ड की? Yes, 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 sir. it's visible. सो मैम आप किसी को जब माइनर प्रोजेक्ट दोगे तो अब होगा कि लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी माइनर प्रोजेक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है आफ्टर सीइंग लाइक वंस दे स्टार्ट यूजिंग दिस. ठीक है, सो व्हेन यू आस्क क्वेश्चन देम, आस्क देम डीपली कि ऐसा उन्होंने क्यों बनाया होगा, क्या बनाया होगा. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट वी आर गोइंग टू आस्क. सो ये जो है ये कोडिंग एजेंट है. ठीक है, एआई का कोडिंग एजेंट है. ठीक है, this particular agent, so agent मतलब this particular tool writes code and builds application. Okay, and अभी दुनिया में नंबर दो पॉपुलर हैं, उनमें से एक ये है बोल्ट एंड अदर इज लवेबल. ठीक है, सो अपने इसको क्या करने वाले हैं, we are going to मतलब ये आप हमारा चैलेंज इंक्रीज कर रहे हो ऑफ क्वेश्चनिंग Ma'am, आल्सो. sorry ma'am, I lost your voice. मैं ये कह रही हूँ कि आप हमारा चैलेंज इंक्रीज कर रहे हो, लाइक हाउ वी नीड टू डीप ड्राइव इनटू द प्रोजेक्ट एंड आस्क क्वेश्चंस. करेक्ट दैट मैम. इज द चैलेंज टू अस. आप लोग भी इम्प्रूव हो मैम, आप लोगों को भी इम्प्रूव होना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने फास्ट मूव कर रही है कि एल्स मतलब एवरीवन विल कीप ऑन इवॉल्विंग. तो आप लोगों को पता जाएगा कि Yes. कितना इजी इंप्रूव हो गया है चीजें. तो व्हाइल यू आर आल्सो जजिंग ना, आपको भी पता होगा कि कैसे जज करना है. Not only the students, rather the teachers or faculties have to pull up their socks now. करेक्ट मैम. सो अभी यहाँ पे करते हैं मैम कि बिल्ड अ HRMS सिस्टम. ठीक है, विथ अटेंडेंस मैनेजमेंट फॉर 30 students of MCA and 30 students of BCA. This is to be used for Technia College, Rohini. Give me a TECNIA. fill-in dummy data to make it realistic. Give 2 roles to log in, one being admin or teacher and other being a student. ठीक है, and we are going to ask it to build a tool for us. ये अभी आप लोग को डेमो देना है मैम, कि इसलिए मैं इसको सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखा, वरना ये जो प्रॉम्प्ट है, सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. इस प्रॉम्प्ट को और इवॉल्व किया जा सकता है कि क्या क्या चीजें इसमें करनी है, क्या नहीं करनी है. एंड ये इसको प्रॉम्प्ट दिया, अब कोडिंग एजेंट जो है वो उसको सोच रहा है एंड इसकी एप्लीकेशन बनाना चालू करेगा. ठीक है, इस तरीके एप्लीकेशन को आज से 10 years 12 years पहले, जब व्हेन आई स्टार्टेड एज अ फ्रेशर इन कॉलेज निकल के जब कंपनी में गया था, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने में हमें जो टीम्स होती थी, तो 3 से 4 लोगों की टीम होती थी. एंड माइनर मेजर प्रोजेक्ट जब हम लोग करते थे मैम, तो एक पूरा सेमेस्टर लगा देते हैं, उसके बाद भी क्वालिटी जो है वो नहीं आती थी ढंग की. 3-4 स्टूडेंट्स हम लोग मिलकर भी करते थे एंड तब भी क्वालिटी नहीं आती थी. एंड नाउ आई जस्ट पुट इन द सेम प्रॉम्प्ट कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनाने के लिए, एंड लेट्स सी कि ये क्या क्या किया जा रहा है. कि लेफ्ट साइड में बता भी रहा है कि उस ये खुद से सेल्फ डेटाबेस डिजाइन कर रहा है. ठीक है, ऑथेंटिकेशन के सिस्टम लगाएगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालेगा, जो जो उसको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से बनाया जा रहा है. एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी कर रहा है. ठीक है, सो डीप प्रॉम्प्ट, जितना डीप डाइव आप प्रॉम्प्ट में दोगे वो हो जाएगा. ठीक है, लेट्स वेट टिल इट डज इट्स मैजिक. ठीक है, सो गाइस मैं इसमें और टेक्स्ट लिख देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग
कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, ये होगा। मैम फॉर फैकल्टी आई वुड रिकमेंड कि इतने सारे टूल्स पे आप लोग नहीं कर पाओगे, डज नॉट मेक सेंस फॉर यू। फॉर स्टूडेंट्स इट मेक सेंस। जो एज अ फैकल्टी आप लोग को फोकस करना होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स। मैम आप लोग को और कुछ नहीं, सिर्फ एक कोर्स करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है। आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझ जाओगे तो आप सब समझ जाओगे, नथिंग एल्स इज नीडेड। तब आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। बाकी सब ही प्रॉम्प्ट के अलग अलग इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। सो इफ यू रिमेंबर, किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि उसने गामा यूज किया है, ठीक है। गामा हो गया प्रेजेंटेशन ढंग से दिखाने के लिए, राइट। तो वो भी प्रॉम्प्ट के ऊपर रैपर लिखा हुआ है कि भाई कि आपके पास टेक्स्ट आया, टेक्स्ट से आपको कुछ इमेजेस और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिखाने हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट हो गया। या फिर जो और भी तरह के यूज केसेस हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर हो गए। तो एक से आपको कोर्स करना है प्रॉम्प्ट का, 1 से 2 घंटे का एफर्ट लगता है मैम उसको। कोई पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लो या लिंक्डइन एनीथिंग, वो आप समझ जाओगे कि प्रॉम्प्ट, हाउ अ प्रॉम्प्ट वर्क्स, एंड यू आर 90% थ्रू। कि भाई आपको स्टूडेंट के साथ जब एआई लेवल इंटरेक्शन करनी है कि उस स्टूडेंट ने कैसे वर्क किया या उससे कुछ आपको डिस्कशन करनी है, आप सॉर्टेड हो जाओगे। तो दिस इज फॉर फैकल्टी मेंबर्स कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक आप लोग कोर्स कर लो। So we Guys, can in do it parallel, through बताइए। this prompt engineering that you were just talking about. We can do it through Simplilearn or Coursera, whatever is suitable, na? एनीवे मैम। Okay. मैम गूगल के फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल आते हैं, तो वो आपके सर्टिफिकेशन में भी ऐड हो जाएंगे। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल या रिज्यूमे आप लोग बनाते हो तो उसमें उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। दीज आर प्रीटी गुड कोर्सेज जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक। And I think we as an IT faculty and IT students, these tools are, we should learn all these tools which are mentioned here, at least for knowledge sake. And students, they they will be reaching out to the industry after completion of this course. So it will be better for them also to go through these courses. मैम स्टूडेंट्स के लिए तो मस्ट है मैम। अगर आपके रिज्यूमे पे आपने आज के मोमेंट में भर के एआई टूल्स और एआई के प्रोजेक्ट्स नहीं लिखे ना, तो जॉब मार्केट बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। आप फैकल्टी बैठे हो आप लोग, मैम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, अगर कि भाई देखो कंपनीज क्या जॉब मार्केट है, यू एंड आई बोथ नो मैम। मैं कंपनी साइड से मेरे को पता है कि मैं ही हेजिटेंट हो गया हूँ। पहले 2 साल पहले इफ एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर आई वाज हायरिंग 10 पीपल फॉर माय टीम्स और फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। अब 10 की जगह आई एम हायरिंग 4 पीपल। तो हेड काउंट तो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो क्वालिटी है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होगी कि द पर्सन हु इज अप्लाइंग हैज डन सर्टन प्रोजेक्ट्स और नॉट। वो बहुत मैंडेटरी हो गया है। 8 CGPA, 6 CGPA, 10 CGPA ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया मैम। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह गया कि yes the guy showed up in the college and he wrote his exams, but does the person knows what real work or what how the industry is moving, वो जानना जरूरी हो गया। सो ये उसी प्रॉम्प्ट का एक एग्जांपल है। मतलब वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस टू सम अदर कॉलेज, ये मैम ये इसी प्रॉम्प्ट का जो प्रॉम्प्ट लिखा था HRMS का, उसी का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ गाइस। उतना से ही टेक्स्ट डाला है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट हैज जनरेटेड। नाउ लेट्स से इफ आई एम एंटरिंग एज एन HR एडमिन, ठीक है। HR एडमिन ये कॉलेज के हिसाब से नहीं, ये आपके कंपनी के हिसाब से पर्सपेक्टिव में, ठीक है। HR एडमिन की तरह मैं लॉग इन कर रहा हूँ। आई क्लिक ऑन साइन इन। दिस इज द डैशबोर्ड विच आई गेट। एंड ये मैम आप समझो सिर्फ 15 मिनट के प्रॉम्प्ट लिख के या 15 मिनट से लेके 1 घंटे का प्रॉम्प्ट है कि मैं वर्क करते चला गया, उसके हिसाब से बन चलेगा। ये डैशबोर्ड बन जाएंगे।
कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, टीम मेंबर्स कौन कौन है मेरे, कौन लीव पे, कौन अपकमिंग है, उनके क्विक एक्शन क्या लेने हैं, हर टीम मेंबर का स्टेटस क्या होगा। एंड इसके लिए मेरे को कुछ कोड नहीं करना पड़ा था, आई हैड टू ओनली गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। ठीक है, लीव अप्लाई करनी है मेरे को, तो मैं लीव पे गया। अब लीव में मेरे को क्या फुल डे लीव अप्लाई करनी है, फर्स्ट हाफ करनी है, सेकंड हाफ करनी है। आप यहाँ देखोगे साथ में इसके सिंबल्स लोगोज भी आए जा रहे हैं। सो आई हैव टू कीप टेलिंग इट दैट व्हाट एग्जैक्टली आई नीड। ठीक है, ये सैटरडे संडेज के हॉलीडे होने तो उसने उस हिसाब से ब्लॉक कर दिया है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई केप्ट ऑन राइटिंग इन द प्रॉम्प्ट एंड उसने ये बनाते चला गया। दिस इज द आउटपुट व्हिच इज बीइंग जनरेटेड। सो जस्ट इमेजिन कि किस लेवल पे जा सकता है चीजों को बनाना। एंड आपके पास अगर कोई स्टूडेंट लेके आए प्रोजेक्ट जिससे का, तो उससे आपको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर एआई से बनाया ना तो इट शुड बी ओपन, मतलब इट इज नो हार्म इफ समवन टेल्स कि उसने एआई से बनाया है, बिकॉज नाउ द पर्सन नोज कि उसने एआई टूल यूज किया है, पर वो अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा वो नेसेसरी है। अगर एआई टूल्स यूज करने के बाद भी इस क्वालिटी का अगर वो वर्क जनरेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स द पर्सन डजंट नो द कोडिंग एज वेल एंड डजंट नो द एआई टूल्स एज वेल। सो या तो वो कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाए, या फिर जो एआई टूल्स हैं उनको लेके वो आउटपुट जनरेट करना सीख जाए कि भाई this is the quality of work which I want to generate. So this application is live now. Sorry? This application that you have just created, it is live now. We can access it Sorry, I didn't get easily. you. Yeah, this application is being built right now. So this is Even one no of the need of examples. hosting. No need of hosting even. Ma'am, can you please come again? I'm saying that whenever some code is written and if it is to be live as a website so that globally this can be accessed, so it should be hosted, right? So Yes. as per my understanding that you have just shown, it means Mhm. this not only the code is created, rather the application is live without hosting, right? Yes, that's a wonderful question you asked, ma'am. That's a really interesting and wonderful question. So मैंने अभी लिंक डाला मैम। So what they have done कि AI tools ने इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया है। ठीक है, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया मैंने अभी लिंक दिया, netlify.app करके एक इकोसिस्टम है। netlify.app होस्टिंग का ऑप्शन देती है, एंड बोल्ड जो है कोड के राइटिंग का ऑप्शन देता है। तो आपने प्रीव्यू कर लिया, जब प्रीव्यू कर लिया अब आपने बोला यस आई वांट टू मेक इट लाइव, मैंने बोला टूल पे जाके क्लिक किया कि मेक इट लाइव, तो वो नेटलीफाई के साथ उसका इंटीग्रेशन है एंड उस पे उस पूरी एप्लीकेशन को होस्ट कर देगा। सो यू डोंट नीड सर्वर्स और एनीथिंग, जस्ट इन फ्यू क्लिक्स आप खुद से होस्ट कर पाओगे। Right. तो मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ bold.new का, आप लोग खुद भी सब एक्सप्लोर करेंगे एंड एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, दिस कुड बी एज सिंपल एज, जब इसको मैंने अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब फर्स्ट टाइम लोगों को सिखाया, सो पीपल क्रिएटेड एन ऐप एज सिंपल एज दे वांटेड अ रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, कैन दैट ऐप बी बिल्ट? यस, दैट कैन बी बिल्ट जस्ट बाय राइटिंग 10 इंग्लिश लाइंस, कुछ कोडिंग वोडिंग नहीं, 10 इंग्लिश लाइंस प्रॉम्प्ट में देना है एंड पूरी एप्लीकेशन बिल्ट हो जा रही है। और वो वेब ऐप बिल्ट होगी, ऑब्वियसली एंड्रॉइड आईओएस ऐप बिल्ट नहीं हो रही, वेब ऐप बिल्ट हो रही है। एंड्रॉइड आईओएस बिल्ड करना है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। ठीक है, बट जो टाइम था किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो कोई एप्लीकेशन बनाने में हफ्ते भर या महीना भर लगता था, वो रिड्यूस होकर फ्यू मिनट्स रह गए। दिस इज द रीजन जो आज से 10 साल पहले हायरिंग होती थी हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की, वो रिड्यूस होके आप समझो 30-40% रह गई है। ये इवोल्यूशन हो रहा है। तो जो कह रहे हैं कि एआई विल टेक अवे इंजीनियरिंग जॉब, वो एआई जॉब नहीं लेने वाला इंजीनियर्स की, पर जो इंजीनियर एआई यूज करना नहीं जानते हैं उनकी जॉब चली जाएगी। उनको या तो जॉब मिलेगी नहीं या चली जाएगी। ये होने वाला है। Not only we are looking for smart people, rather smarter people we are looking for. स्मार्टर पीपल हु नोज हाउ टू यूज एआई। मैम ये बहुत Right. मैंडेटरी हो गया। दिस इज टेकन फॉर, मतलब आज के टाइम में कोई बोलता है कि उसने सिर्फ एआई में खाली चैट जीपीटी यूज किया है और कोई टूल्स यूज नहीं किए हैं, तो इट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन मैम ऑन दी कंपनी साइड मैम, बिकॉज दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड कि इतने सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। ये मैम अभी जो प्रॉम्प्ट डाला था इसने इसका बना दिया है वेबसाइट। ठीक है, सो अपने इसको प्रीव्यू करेंगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, yes, visible. it's ना अभी इसको डाला था टेक्निकल डालने के लिए, इसने वेब ऐप बनाया है। ठीक है, स्टूडेंट का ये है, चलो डालते हैं। पासवर्ड इसका ये है। अभी क्योंकि डेमो के लिए बनाया इसने सब इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे दी। मैं करता हूँ और लॉग इन करता हूँ, साइन इन करता हूँ। लॉग इन, पासवर्ड 123 इसने खुद ही बनाया। इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, क्योंकि इसने खुद ही बनाया और खुद ही के पासवर्ड को ये इनवैलिड क्रेडेंशियल बोल रहा है। नहीं, आपने पासवर्ड का पी शायद स्किप कर दिया है।
ठीक है, एडमिन से मैं लॉग इन किया, एडमिन से आप देखोगे स्क्रीन आ गई इसके पास यहाँ पे, राइट गाइस, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। Yes, sir. तो मैम इसको मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, अगर आप पढ़ोगे, इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एचआरएम में सिस्टम बिल्ड करना, अटेंडेंस 30 स्टूडेंट्स एमसीए के होंगे, 30 बीसीए के होंगे, टेक्निकली यूज करना, डमी डेटा खुद से फिल कर लेना और 2 रोल दे देना। इसने इन सबको खुद बना दिया कि मेरे बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर बना दिया, टेक्स्ट बना लिया, ऑल कोर्सेज को फिल्टर आउट करना है कि मेरे को बीसीए के स्टूडेंट्स देखने की एमसीए के मैं फिल्टर आउट कर लूंगा, यहाँ पे फिल्टरिंग भी लग गई, और कौन से ईयर में कौन सेमेस्टर में वो सब एप्लीकेशन यहाँ पे बन के आ गई। उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे को किस बच्चे के लिए, इस पर्टिकुलर कविता पांडे सपोज को ये है, इसको क्लिक करूंगा मैं, मेरे को करना है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मैंने मार्क कर दिया। और अगर आप देखोगे कितना टाइम लगा मेरे को, ये प्रॉम्प्ट लिखा था और अपने बातें कर रहे थे, पिछले 10 मिनट में ये एप्लीकेशन बनी मैम। Hardly है। 10 minutes. तो मैं क्लिक करता चला गया मैं, ठीक है, इसने डीबी भी खुद बना दिया। अब मेरे को इसकी रिपोर्ट्स देखनी है, तो रिपोर्ट्स अभी तक मैंने कुछ मार्क नहीं किया, ये मार्क करके यहाँ पे रिपोर्ट बनाने का अगर ऑप्शन होगा, हाँ लेट्स से ये मैं करता हूँ, मार्क लीव एब्सेंट। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर अपडेट भी हो जा रहा है कि एमसीए के 30 बच्चे जो कि 30 जनवरी के लिए थे, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि अभी आप लोग क्या टूल यूज कर रहे हो, पर इसको अगर मैं लाइव कर दूंगा तो आप लोग अपने कॉलेज में यूज कर सकोगे इसको। ये किया, उसके आपने कर दिया सेव अटेंडेंस। ओके, अब रिपोर्ट में देखें तो रिपोर्ट में अभी कुछ नहीं है, पर ये सेव अटेंडेंस होगी, इनकी अटेंडेंस सेव हो गई, करेक्ट। अब मैम आपका क्वेश्चन था कि अभी तो ये देखोगे तो ये एप्लीकेशन मेरे लोकल पे है, ठीक है, मेरे लोकल लैपटॉप पे है, आई वांट टू मेक इट लाइव कि आप लोग यूज कर पाओ, करेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पब्लिश का, आर यू गाइज एबल टू सी द एप्लीकेशन का पब्लिश राइट साइड में? Public right side. ऑन द राइट साइड, Not visible. मैम यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है पब्लिश का, Yes, yes, yes. We है can ना? see at the top right corner. करेक्ट, ये एप्लीकेशन मैंने बनाई दिखाई आप लोगों को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पब्लिश, ठीक है, दिस ऐप इज नाउ गेटिंग पब्लिश्ड, इट इज येट नॉट पब्लिश्ड बट इट इज गेटिंग पब्लिश्ड, आई क्लिक ऑन पब्लिश, ठीक है। अब ये इस एप्लीकेशन को पब्लिश करना चालू कर देगा। अभी जैसे मैंने आपको एक लिंक दिया था ना, वैसे ही एक और लिंक जनरेट करेगा आपका नेटलीफाई पे, और वो लिंक आपको मिल जाएगा एंड कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है उस एप्लीकेशन को, ठीक है। डेमो के लिए सब बना रखा है, तो डमी डेटा पड़ा है, यूजर एंड पासवर्ड भी डमी है उसके अंदर, ठीक है। पर इसको यूज करके आप लोग इंटरनली कॉलेज के अंदर भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, और बेसिक अटेंडेंस सिस्टम इज रेडी, ठीक है। अब यही एप्लीकेशन आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सुषमा में मेरे को कहती जब मैं स्टूडेंट था कि बनाने के लिए, तो मैं पूरा सेमेस्टर लगा देता, और उसके बाद भी ये क्वालिटी वर्क नहीं आता, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि किस पे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, दुनिया चेंज हो गई है, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीन अगर देखो, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये यूआरएल ये रहा, ठीक है। इस यूआरएल को मैं खोलता हूँ ब्राउजर पे, ये यूआरएल मैं यहीं पे इस पे भी डालता हूँ, आप लोग भी ओपन करो, ठीक है। एंड एडमिन वाला डिटेल्स लेके आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, yes, it will. ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर गया, डॉक्टर राजेश कुमार नाम से इसने एडमिन सेलेक्ट किया, एडमिन नाम बनाया। कंटेंट जो है मैम वो डमी डेटा है, तो बीसीए के स्टूडेंट्स हो गए, ये हो गए, एंड एप्लीकेशन होस्ट भी होगी, और पूरी एप्लीकेशन में मेरे को किसको अटेंडेंस मार्क करनी है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है कि बंदा बच्चा लेट आया है, ये सब मैं मार्क कर सकता हूँ। So the reason being the speed at which things are growing and changing and evolving, आपके पास कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन भी लेके आता है तो उससे आपको पूछना पड़ेगा भाई एआई से बनाया तो बताओ, और एआई से नहीं बनाया तो क्वेश्चन करना पड़ेगा क्यों नहीं बनाया है, ठीक है। बट फैकल्टीज के लिए इतने सारे टूल्स को लर्न करना समझना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड आपका वो जॉब प्रोफाइल भी नहीं मैम, आपका जॉब प्रोफाइल में बिकॉज एआई हैज कम एंड इवॉल्व द वर्ल्ड, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझना जरूरी हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि मैंने एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपके पास आता हूँ कि मैं कहीं स्टक हूँ, तो आप मेरे को गाइड कर सको कि वो प्रॉम्प्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जाके एआई को यूज मेरे को ही करना है, पर वो टूल यूज करते वक्त क्या वर्ड्स लिखने हैं वो मेरे को पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एज अ फैकल्टी आप बता सकते थे कि भाई यहाँ पे आप जब यूज करने वाले हो, ये टेबल मैंने बनाए तो
यू कैन टेल देम दैट आपको डीबी में पढ़ाया गया डीबीएमएस में कि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आपने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगाया कि नहीं लगाया है, आप एप्लीकेशन बना के ले आए अपना, चलो इसमें डीबी खोलो और दिखाओ इंडेक्सिंग किस किस टेबल पे लगी, किस कॉलम पे लगी कि नहीं लगी। ठीक है, ये आपको प्रॉम्प्ट में पता है कि आप एज अ फैकल्टी या कोई भी जो स्टूडेंट है उसको उसकी एक्सपर्टीज इसमें आएगी। जब वो प्रॉम्प्ट लिखे बनवा रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो लिखे कि इसमें जो आईडी कॉलम है उस पर इंडेक्सिंग होनी चाहिए थी, ताकि मेरे को सर्च करने में आईडी कॉलम में फास्ट हो जाए, या नेम कॉलम पे लगा रहा हूँ ताकि मैं सर्च में फास्ट कर सकूं कि सुदर्शन नाम का मेरे को बंदे यूनिवर्सिटी में 1000 सुदर्शन हो सकते हैं या 1000 अभिषेक हो सकते हैं, तो उनमें से अभिषेक गुप्ता फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉम्बिनेशन पे इंडेक्सिंग लगी, वो फर्स्ट मेरे पास आ जाए, तो वो मेरे को होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक चीजें एप्लीकेशन बनाना आज के टाइम में बहुत फास्ट हो गया मैम, पर उसमें प्रो लेवल डालना या एक्सपर्टीज डालना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड प्रॉब्ली मैंने कुछ कुछ टूल्स के नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, जो कि आप लोग को मतलब एज स्टूडेंट्स आप लोग को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट हैज गॉन वेरी टफ, एंड दीज आर द टूल्स जो आप लर्न करके ही यू विल बी एबल टू गेट इंटरव्यू रेडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Sudarshan, and it was really great. एक तो सबसे पहले being a student, it is very proud feeling for me, and आप बहुत अच्छा आपने इसमें like the way you presented, the way you the content you had gathered, it was really good and helpful. I think not only to the students who joined this webinar, but all of us here learned a lot from you. And hopefully we'll have this connect in the future as well. Now I invite Nupur Jain, Dr. Nupur Jain to please extend the vote of thanks. Good noon, sir. It's really very amazing and very informative knowledge given by you, and I'm really thankful to you that you just spread your knowledge between us, between our students, and even I just not aware about that tools. So really very thankful to you. And आपसे हम further कैसे connect हो सकते हैं ये थोड़ा हमें बताएंगे आप with the thanks. Ma'am, you guys can reach out to me LinkedIn, ठीक है, and I think, ma'am, I'll obviously start some forum or some WhatsApp group as well, because not just Technia, I'm connected with other colleges as well. A lot of students and faculties have been reaching out to me, and मेरे को अच्छा भी लगता है मैम, because if I'm able to help these students कि कैसे वो not just job ready but technology ready, and मैम AI एक सिर्फ जॉब पे नहीं, हमारी normal day to day life पे impact आने वाला है. So if I could help them, enable them कि कैसे हम अपनी life को AI से adapt कर पाएं, improve कर पाएं, तो वो चीजें के लिए I'll share some forum, I'll share with सुषमा मैम कि कनेक्टिविटी के लिए चैनल क्या रह सकता है, प्रॉब्ली सम व्हाट्सएप चैनल या लिंक्डइन ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे इस टाइप से फोरम टाइप रहेगा. And Thank you so much, sir. Thank you so much. So you're given a lot of knowledge, lot of AI tools, and it's really very helpful for the students as well as the faculties. And जो doubt है students का as well as faculties का, या काफी students पूछते हैं कि AI आने वाले time में job skill कर देगा. So you just cleared all that concept also. So really very thankful on behalf of the Technia whole team, from the students, from the faculties. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you. Ma'am, could we leave now? Thank you so Darshan much. sir, I have sent a LinkedIn request. Please accept it. Sure, ma'am. I'll send my LinkedIn here as well. So if anyone else wants to Okay. connect now, they can reach out to me. Thank you. Thank you, sir. Just a second, I'll share my profile link. You guys can, all the students can follow me as well over here. I keep on posting content कि क्या क्या नई चीजें आ रही हैं and how industry is moving. So you can stay connected, and this is more relevant from perspective who is just starting or you want to learn, explain. See, content in दुनिया में हर चीज का बहुत सारा available है, but जो real content जो कि actual impact create करता है, I tend to post that, and you can obviously follow me over there. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much, you. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Ma'am, we can leave, right? I can leave.
Yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you.